कमिंग टू फूड, आप ऐसे कोई फूड आइटम्स है जो बिल्कुल अवॉइड करते हो? I have left non-veg क्योंकि एक योगी को मुझे ऐसा लगता है बिकॉज आई सी लॉट ऑफ पीपल दे कॉल देमसेल्फ योगा yogis and yoga instructors or yoga instructor rather not yogis I would say क्योंकि एक योगी जो होगा उसको अहमियत पता होती है एक एक मास की एक कि उसमें प्राण नहीं है वो जो प्राण है वो मतलब मैं कैसे बताऊं आपको मतलब मैं अगेंस्ट मैं लोग मुझे शायद बोले कि दैट इज पीपल से माय लाइफ माय चॉइस एंड ऑल दिस सो मेनी थिंग्स एंड मिसकंसेप्शंस रनिंग अराउंड लेकिन अगर आप एक योगी है एक ट्रू योगी है यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राण. Welcome to the Yoga Conversations podcast, where we meet with yogis, meditation practitioners, and wellness practitioners, deep dive into the myths around these disciplines and dissect it for everyone. So today we have with us Pooja Rani. She's been coming from a corporate background and who has worked with Reliance Jio, Prime Focus, and Snapdeal. But later in life, she realized that this is not something what she wants it in her life to be. Stumbling upon a 7-day retreat at McLeodganj, she discovered true yoga. She then decided to take this path ahead, did her own TTC 200-hour course, and today she herself conducts and facilitates the 200-hour TTC courses across India, as well as 7-day wellness retreats. And she has done all this work in Rajasthan, Uttarakhand, Tamil Nadu, and the Himalayas. So, welcome, Pooja ji. Thank you so much Rishi for a warm welcome. Thank you for having me over. Likewise, Pooja ji. So, again, this podcast would be more of a English podcast, a Hindi come English podcast. So, Sure. it will be more interesting Definitely. for our listeners. Mm-hmm. So, Pooja ji, I'll just dive in. Let's start with the journey first. What made you take up yoga? अगर सिंपल भाषा में बताऊं जैसे मेरे गुरुजी कहते हैं माय गुरुजी हिज नेम इज आचार्य अद्वैत योगभूषण जी. पहले तो उनको शत शत प्रणाम. जैसे वो कहते हैं कि हम सब ने इनफैक्ट टॉक्स अबाउट हिंदूज बेसिकली सॉरी इंडियंस दैट वी हैव योग एलिमेंट इन आवर जीन्स हमारे अंदर बसा हुआ है. सो इट जस्ट दैट कि इस योग तत्व को आपको इग्नाइट करना रहता है. So I think the yoga element was always there in me. It's just that when I got my first experience was in a gym basically, where this very beautiful 49-year-old lady was doing some stretching, and मेरी friend है gym में, and she dragged me to this lady, and she was like, "Let's do this yoga with her." I was like, "I don't like yoga. I don't want to do yoga." Because yoga was very slow. It requires a lot of patience, and I was more like a gym person into cardio and Pilates and HIIT and all kind of body combat exercises. So I did not want to try it at all. But then she literally coaxed me into just attending, just practicing with her because she was doing all by herself, out in the deck of the gym where on the open sky, and I'm the kind of person who enjoys the outdoor activities more. So वहां पे जब मैंने उनके साथ एक बार किया योगा, and she corrected me. It was not like a regular class जहाँ पे 30-40 बच्चे हैं. नहीं, it was just her and me and my friend. And while we were doing it, she kept on correcting my alignments, and she made me focus on my breath during the entire practice, and she was constantly connected with me for the next 30-40 minutes. And after 40-45 minutes, when the yoga got over, the abhyas was finished, I realized that my mental state, my emotional state was really amazing, and I could not fathom the entire day, the next day, like what has really changed. I did not win a lottery, so what really happened back then? Then I realized and zeroed on to this thing that it was yoga who brought this different, mental state in me. And that is when she was a Sivananda Abhyasi. So she taught me Sivananda yoga, and I started practicing that with her. And I used to rush to my gym in the evening after my office hours,
and searched for her. Then I started practicing with her. Then I looked for various Sivananda ashrams in Delhi. I joined one in the Nehru enclave by the house of Mr. Jaitley. And in this chaotic Delhi, pollution and the fast-paced and the traffic-filled city, I found this was a very posh area, and there was a pin drop silence in that ashram. And the moment I entered that ashram, I felt, that was a spiritual energy that was in that place. And I loved the people there. I loved the way they were conducting the trainings there. Trainings, not training as in the regular yoga classes, So I started attending those 90 minutes yoga classes in that ashram. Every evening I used to rush. And that is when I made up my mind to that I will definitely go to a Sivananda ashram, because I heard so many stories from Alpana ji about, what does an ashram look like. एक आश्रम का एक पूरा एक दिनचर्या होता है जहाँ पे आपको कर्म योगा करना होता है. देयर इज अ भक्ति योगा टुवर्ड्स द एंड, सत्संग होता है. देन वहाँ पे आपको गीता का पाठ पढ़ाया जाता है, आपको इतना अभ्यास कराया जाता है, 2 टाइम खाना मिलता है, सात्विक खाना मिलता है. जब मैंने ये सारी बातें, इट फेल्ट लाइक अ ब्यूटीफुल स्टोरीज फ्रॉम सम अदर वंडरलैंड कि ये क्या है. सो अंदर ही अंदर एक इग्निशन होने लगा था कि मुझे भी ऐसी जगह जाना है, मुझे भी रुकना है यहाँ पे, और मुझे ये सब चीजें करनी है. Somehow I started traveling to all those spiritual places, and I started traveling solo. तो मेरा मन सिर्फ spiritual places पे जाने को करने लगा, और जहां भी जाती था I used to look out for मंदिर्स, और there were Buddhist temples and monasteries. So मैंने ये सब चीजें बहुत डिस्कवर की. एंड यहाँ पे मैंने शांति अनुभव की. एक अंदर जो एक आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, माय सोल स्टार्टेड सीकिंग दीज थिंग्स, एंड आई केप्ट ऑन ट्रैवलिंग सोलो. बहुत ज्यादा ट्रैवल किया और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे ट्रैवल किया. फिर मैंने फाइनली मन बना लिया था कि मुझे शिवानंदा जाना है. फिर शिवानंदा आश्रम में मैंने स्वामी शिवानंदा जी की बुक्स पढ़ी, स्वामी विष्णु देवानंदा जी की बुक्स पढ़ी, और वहां मुझे मेडिटेशन से मेरा परिचय हुआ. मेडिटेशन किया, ध्यान किया, समझा कि क्या होता है, कैसे करते हैं ध्यान. तो फिर एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मैंने रिपीटेडली बुक्स के अंदर पढ़ी, वो ये था कि आपकी जो साधना है, इट वुड नॉट अकम्प्लिश अनलेस एंड अनटिल यू आर डूइंग इट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुरु. सो मन ही मन में मैं एक गुरु को सीख करने लगी. एंड ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जैसे किताब में लिखा था, पूरी दिनचर्या मैंने वैसे बना ली कि 4 बजे 3 बजे उठना है, 6-7 बजे तक अभ्यास खत्म कर लेना है, 9 बजे मैं ऑफिस पहुंचने लगी. मेरा पूरा लाइफ एकदम सॉर्टेड हो गया, जैसे वो लोग दिनचर्या. लेकिन फिर भी समवेयर ऑन द लाइन आई वाज फीलिंग कुछ कमी है. I was feeling all those experiences during Dhyan, and I felt a joy. And त्राटक करते हुए लगा कि उस लॉ के अंदर किसी की छवि है, कोई तो है जिसको मैं पुकार रही हूँ, कोई है जो मुझे पुकार रहा है. And that is when the grand entry happened of my Guruji in my life. And I met him and I spoke to him on the phone, and that is when he broke. He challenged my ego, and slowly and steadily he started breaking my ego. And that is when I decided to not go to Sivananda and visit him in his ashram in Kota. And that is where I learned the traditional way of वैदिक hatha yoga. और जब मैंने वो हठ योग उनसे सीखा, he literally showed me a way to break the monotony of this patterned life and come out of it, and you can actually feed your soul, and you can do things what your soul desires. और he told me not never to feed your ego. जो एज के साथ साथ आपकी ईगो बढ़ती रहती है, he taught us how to diminish your ego. उसको निकाल के बस बाहर रख दो. Now he taught me literally, once my ego was left out, I knew that I had to speak to a CEO and a peon of a company with equal respect. वो compassion की जो भावना थी, बहुत सारी चीजें, मतलब आप देखिए अभ्यास करने के बाद जो जो चेंजेस आते हैं आपकी मेंटल स्टेट में, आपकी फिजिकलिटी में, वो धीरे धीरे उन्होंने मुझ में डाल दिए एक तरह से अभ्यास के थ्रू. So that is where my journey started. But then I realized जब मैं मैक्लोडगंज में उनके साथ रिट्रीट कर रही थी, I was there.
ट्यून्ड में ऊपर एकदम टॉप पे क्लिफ पे, दैट इज वेयर आई डिसाइडेड कि मैंने उनको बोला आप जाइए गुरुजी एंड आई विल स्टे बैक हियर। मैं यहीं पे कैंप साइट में स्टे करूंगी। आई स्टेड देयर अलोन। आई वाज नॉट हैविंग मनी, आई वाज नॉट हैविंग एनी क्लोथ्स, आई वाज जस्ट इन माय जैकेट एंड माय ट्रैक पैंट्स, और मैं ऊपर रुक गई। एंड वहाँ भैया थे, आई वाज लाइक भैया मुझे टेंट में रहने दीजिए। ही वाज लाइक ओके। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है तो आप क्या करोगे? आई वाज लाइक आई विल डू योर जॉब। क्या करोगे आप? तो आई मेड मैगीज फॉर देम। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए थे जो गाइड्स आते हैं, जो ट्रैक पे लेके जाते हैं। मैंने वहाँ पे रुका एंड वहाँ पे रुक के मैंने उनके लिए खाने बनाने में हेल्प की। मैंने चपातीज बनाई, मैंने खाना सर्व किया, मैंने टेंट सेटअप किए। मुझे टेंट सेटअप करना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने मुझे पहले टेंट सेटअप करना सिखाया। उसके बाद आई सेटअप 17 टेंट्स फॉर द इंटायर cohort of the people who stayed there, जो जर्नी के लिए आए थे, ओवरनाइट स्टे करने के लिए आए थे। They were more than 50 people, and so it was a good experience. That is where I realized कि मुझे एक अच्छी लाइफ के लिए, एक फ्री लाइफ के लिए, आई डोंट नीड मनी। आई रियलाइज दैट बिकॉज खाना मुझे मिल गया फ्री में वहीं पे काम करने से, रहने को मुझे मिल गया फ्री में वहीं पे उनके साथ काम करने से, सीखने से। और आई वॉज लिविंग अंडर मिलियंस ऑफ स्टार्स। अगर आप ट्रून ट्रैक पे जाते हैं, आप देखिए millions of stars were there। और जब सुबह उठे and रात को ही I could see the snow-capped mountains were shining like silver, under the moonlight. So that was a blissful state, and that is the point where I decided, no, I do not want to work anymore. I did not want to be a corporate slave anymore, and especially generating revenue, millions of revenue for a foreign MNC. Why for a US-based MNC I'm working so much? So I did next day, Monday था, I decided not to come back. मैं अपने hostel में गई. I wrote a mail to my CEO that I am resigning. I switched it off and I stayed for 2 months there. I visited monastery and I enjoyed my life, my time there in McLeod and Dharamshala. So that was the turning point of my life, I would say. Did you any time feel later or regret later that why did I leave my job? It's very difficult to manage your expenses or lifestyle, which you have been experiencing for quite some time, right? But then, Yeah. did you have those feelings anytime? कभी कभार आई, 2-3 बार आई in fact, because I was relying on my what do you call that, PF, my provident fund basically। जो मेरे इतने सालों का, 8 साल की जॉब का जो मेरा पीएफ था, मैं उस पीएफ पे रिलाई कर रही थी कि ये मेरी ईएमआई निकाल देगा, बिकॉज आई हैव ह्यूज ईएमआई, आई हैव माय लग्जरी लाइफ थी। बट एट द सेम टाइम लग्जरी लाइफ के साथ बहुत एक्सपेंसेस थे, मेरे क्रेडिट कार्ड बिल्स थे। आई यूज्ड टू ट्रैवल लाइक लैविशली एंड अब्रॉड एंड एवरीथिंग। साल में ट्रिप्स बहुत होते थे मेरे, अब्रॉड का भी होना और इंडिया के बहुत सारे होने। सो अब इतना सारा तो मैंने डेट लिया हुआ है फ्रॉम द बैंक, हाउ टू गेट ओवर दैट। सो पहले के कुछ महीनों में मुझे मेरे दोस्तों से हेल्प ली, मैंने उनसे पैसे उधार लिए। दे यूज टू पे माई ईएमआई। और फिर मैंने, मेरे पीएफ को आने में बहुत टाइम लग गया। सो दैट वाज अ स्ट्रगलिंग टाइम व्हेन आई कुड नॉट फिगर आउट कि इस महीने, अगले महीने की ईएमआई कैसे जाएगी। 6 महीने लगे मेरी पीएफ को आने में। लेकिन जब वो पीएफ आए, मैंने सबके कर्जे उतारे एंड दैट इज हाउ आई कुड सर्वाइव। एंड लेकिन मैंने उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि मैंने अब टीटीसी कोर्स कर लिया है, सो आई शुड इमीडिएटली स्टार्ट टीचिंग एंड आई शुड इमीडिएटली स्टार्ट मिंटिंग मनी। नो, that is the very wrong practice which the people today, I would not call them, I mean, I'm sure they are instructors, but I did not was in the race of becoming a fitness instructor. I wanted to learn yoga traditionally, and I wanted to become a Vedic teacher, which my Guruji has made me into one. तो उसके लिए मुझे अपनी साधना करनी जरूरी थी। उससे पहले से मैं साधना करती आ रही थी। आई वॉज प्रैक्टिसिंग योगा फॉर लाइक 1.5 years। जब गुरुजी से मिली उसके बाद अब तक आई कुड से 2 years हो चुके हैं कि मैं अपनी साधना करती आ रही हूँ। नाउ फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स, मैंने अभी February से आई थिंक आई स्टार्टेड ऑफरिंग क्लासेस टू ग्रुप क्लासेस। फेब में स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। एंड आई कुड रियलाइज कि ओके, इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ मेरा वर्थ जो था, जो गुरुजी ने मुझे बताया था, उसके हिसाब से when I started asking fees, I could tell you that I made a lot of money, right?
एंड इतना था कि मेरा ईएमआई तो इजीली निकल गए, बट देन जो मेरा लैविश लाइफ स्टाइल था, मैं उसमें फिर से ना जाके आई टुक सेम डिसीजंस एंड आई सेव दैट मनी फॉर माय नेक्स्ट मंथ एंड फॉर माय नेक्स्ट मंथ, बिकॉज देन आई डिड नॉट, आई वाज कंडक्टिंग अनदर टीटीसीज विद हिम, सो वहां पे उलझे रहने की वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाई. नाउ आई एम अप्रोचिंग कॉर्पोरेट्स and I am teaching corporates, I'm taking workshops there, I'm doing webinars, I'm doing talks and everything. ये सब कुछ फ्री में, like I don't ask for money, but then मैं सिर्फ उतना ही पैसा ले पाती हूँ जितने की मेरी ईएमआईज हैं, दैट्स इट. उससे ऊपर मुझे किसी को सिखाना है तो एनजीओज में सिखाना है. इट्स मोर लाइक अ सोशल सर्विस दैट आई एम डूइंग इट फॉर फ्री फॉर पीपल. So that is what how I have managed through my tough times. So कभी भी अपनी क्षमता पे डाउट नहीं हुआ कि पैसे ये है. as Guruji says, money is energy, it will come, you know. and it means कि आप पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हो. मतलब कुछ लोग नेगेटिव फॉर्म में भी लेते हैं, बट यू शुड ऑलवेज टेक मनी इन द पॉजिटिव स्ट्राइड. सो कभी भी टेंशन नहीं हुई मनी की मुझे फ्रॉम दैट एस्पेक्ट. And then you slowly moved on to your yoga journey. You did a lot of you did one course, but then you helped in facilitating multiple courses. आपने अलग अलग जगह कोटा गए, जी फिर आप हिमालयस में किया, आपने ऋषिकेश में किया, आपने तमिलनाडु में किया, और आपने अपने गुरुजी के साथ कंटिन्यू किया. जी 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 जी. आप you talk a lot about the 8 limbs of yoga. बिल्कुल. Why should people talk about it? And first, for our listeners, सबको ये नहीं पता होगा कि 8 limbs of yoga क्या है. आप पहले वो बताइए. देखिए, मुझे ऐसा लगता है राजयोग में जो ये अष्टांग बताए हुए हैं, जो 8 लिम्स हैं, दिस इज द कोर बेसिकली. अगर किसी को अभ्यासी बनना है, दीज आर लाइक मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, आई वुड से. बहुत ही केयरफुली डिवाइस किए गए हैं कि अगर आपको कुछ करना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल में जाते हैं एजुकेशन के लिए, तो नर्सरी से लेके आपको धीरे धीरे सिखाया जाता है. यू दे आर टॉट फोनेटिक्स से लेके आपको एबीसीडी से लेके आपको बोलना लिखना धीरे धीरे. ये तो ना डायरेक्टली आपको हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के सम्स दे देंगे नर्सरी में, ऐसे तो नहीं होता. द सेम वे यम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई वुड से एक हर एक इंसान को, मतलब दीज आर द थिंग्स व्हिच शुड बी टॉट इन द स्कूल टाइम, जो नहीं सिखाई गई हमें. यम है, नियम है, आपके आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. ये सब कुछ एक डिफाइंड वे में चलता है. और अगर आप इसको स्किप करना चाहोगे ना, सो इट विल हार्म यू, इट विल इंजर यू. ये लोगों को नहीं समझ में आता है. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है स्टार्टिंग में मैंने यम नियम को अपनी जीवन शैली में उतारा. उसके बाद मैंने 2 साल तक आसन किए. दिस ईयर आई स्टार्टेड डूइंग प्राणायाम इन माय फोर्थ टीटीसी जो मार्च के अंदर हुआ है, और फिफ्थ टीटीसी, नो फोर्थ टीटीसी जो मार्च में हुआ है. और अब जाके मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में प्राणायाम की वो अहमता जो है, जो भूमिका है, वो अब आई है. बिकॉज आई थिंक मेरी जो जो नाड़ी थी, जो एनर्जी चैनल्स थे, वो सब सॉर्ट हो गए हैं आसन करके. बिकॉज लोग क्या करते हैं, सीधा प्राणायाम और ध्यान में जाने की कोशिश करते हैं, जो कि सही नहीं है. सो दे हैव टू डू गो स्टेप बाय स्टेप. और यम और नियम तो मुझे लगता है, मतलब मैं उस पर बहुत ही ज्यादा बोल सकती हूँ. और मतलब लोगों को पता होने चाहिए कि यम नियम क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, सोशल डिसिप्लिन क्या है. आप चाहें तो मैं उनको बता सकती हूँ, एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट आई थिंक इट विल एक्सपैंड आवर कॉन्वर्सेशंस. राइट राइट. बट अगेन, उन लिसनर्स के लिए जिनको यम का मतलब और नियम का मतलब नहीं पता है, और अगर आप संक्षेप में बताओगे तो आसानी हो जाएगी. ओके, तो मैं शायद मैंने ओके, सो नियम व्हेन आई टॉक अबाउट इज दीज आर द रिस्ट्रेंट्स. ठीक है. तो अगर हम बात करेंगे, बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो हमें स्कूल में सिखाई गई हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से बताई गई है. लाइक अहिंसा, नॉन वायलेंस का हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, हमें गांधी जी के थ्रू बताया गया है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ यम एज वेल. देन इज ट्रुथफुलनेस, सत्य, हमें सच बोलना चाहिए. ये भी हमें घर वाले सिखाते हैं, बचपन से सिखाते हैं. अस्त्या, अस्त्या इज नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी चाहिए किसी की. देन ब्रह्मचर्या, ब्रह्मचर्या में लोगों की बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है चीजों को लेके, कि ब्रह्मचर्या इज ओनली रिलेटेड विद सेक्स. नो, इट इज अबाउट मॉडरेशन, मॉडरेशन इन एवरीथिंग. इवन इफ
You are shopping, you need to have a moderation in buying things. अगर आपको जरूरत नहीं है कुछ चीजें खरीदने की, shoes, why you need to have 20 pair of shoes when you can just have one pair or two pair? But no, people are not conscious about it. People are like, if I talk about fashion influencers, oh my God, I don't know if those people are consciously aware of what they are doing to the environment, because they are not into sustainable fashion. They are not thinking consciously that how much of pollution this faded jeans is causing, how much tons of water is being utilized in creating that one faded jeans. तो मुझे ऐसा लगता है कि these people are not conscious enough. तो मैं directly कोई accusation नहीं लगा रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ, even if you are using so many clothes, try to recycle, upcycle those clothes. Do not just keep on buying and just wear them for once and just throw them away. Do not do that. Do not promote this. I mean, I would not blame the e-commerce today, but something needs to be, switched here in this whole process, जिससे कि हम environment के बारे में सोच सके, sustainability के बारे में सोच सके. Then is अपरिग्रह. अपरिग्रह is non-hoarding. Again, जो मैंने explain किया, अगर आप इतना ले लें कि दूसरे को कमी ना पड़ जाए, आप उतना ही ले जितना आपको चाहिए. So that is what we should be teaching our kids also, जिसे हम sharing सिखाते हैं बच्चों को. So that is very important. Now when I come to नियम्स मुझे लगता है कि ये बहुत ही रेगुलर चीजें हैं जो सबकी लाइफ में आनी चाहिए. मतलब we have maids today to do the cleanliness, but having your own bed, having making your own bed, this is the first step, I think, of controlling your जो आपकी बिखरी हुई जिंदगी है. आई थिंक अगर मैं सुबह उठ के बेड बनाती हूँ अपना, सो आई फील थिंग्स आर इन माई कंट्रोल. सो दैट्स द थॉट प्रोसेस दैट आई हैव, राइट. सो आपको शौच, ये क्लेanliness सारी चीजें, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ क्लेanliness should be in your room or in your environment. The शौच comes here also, the cleaning of your thought process. आपके थॉट साफ होने चाहिए, ठीक है. देन इज संतोष, द कंटेनमेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. लोग आर टुडे, दे आर नॉट कंटेंट, उनका डिजायर्स रुकते ही नहीं है. इफ आई टॉक अबाउट इवन लस्ट, it is never ending. The consumption of porn, there's so many things. You need to have a moderation, you need to have contentment. मैं ये नहीं बोल रही आप over ambitious मत बनो, but you need to have ambitions for the right things at the right place at the right time at the right age, right? Then comes tapas. Tapas is, जैसे मेरी मॉम बोलते हैं, if you need to shine like a sun, you need to also burn like a sun. अपने आप को तपाना पड़ेगा, आपको साधना करनी पड़ेगी, जैसे गुरुजी बोलते हैं. तो अगर आपने साधना नहीं करी, बिना साधना के आप किसी को सिखाने चले हैं, तो आप उसको गलत सिखाओगे. You need to have experience things within yourself first. तो आप में अगर योग नहीं घटा है आपके जीवन में, तो आप किसी और को नहीं सिखा सकते, ठीक है. तो दैट इज तप. तो मैं तप में बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी अपनी प्रैक्टिस को आप फॉर ग्रांटेड लेके मत चलो. आप ये मत सोचो कि आपको सिर्फ हैंड स्टैंड कर लिया तो आपको अभ्यास आ गया. दैट इज नॉट, मतलब there is a huge misconception in people today that asanas, I mean, yoga is just about being flexible, showcasing few asanas and doing a handstand, flaunting a fashion line. No, that is not yoga. That is not yoga. Sukham, sthiram sukham asanam. So you need to bring the stability. You need to experience the blissfulness while you are in an asana. और आप, हर किसी की जो जर्नी होती है वो अलग होती है. तो आप किसी से compete करने के लिए योगा मत करो. आप इसलिए मत कीजिए कि सामने वाले ने head stand कर लिया, so I also want to do. So this was me earlier when I was in my first year of learning yoga. I was so passionate about passionate नहीं, जिद हो गई थी कि headstand सीखना है, और एक हफ्ते में सीख भी लिया. But then जब हेडस्टैंड आ गया तो वो ईगो बढ़ गई कि मुझे तो हेडस्टैंड आ गया, दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट एंड एडवांस आसनास, लेट मी मूव इनटू अ मोर एडवांस आसना, लेट मी डू अ हैंडस्टैंड. आई स्टार्टेड डूइंग हैंडस्टैंड्स अगेंस्ट द वॉल, एंड व्हाट आई डिड, आई एंडेड अप इंजरिंग माय लेफ्ट शोल्डर, बिकॉज मेरे आर्म्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं अपनी बॉडी का वेट बेयर कर सकूं. दे वर नॉट स्ट्रांग, मसल मास इतना नहीं था. एंड देन bursitis happened, the inflammation of this entire shoulder joint, and I was in pain for 3 months, 4 months, and then I ended up getting steroid injections done, and then finally जाके 6 महीने
बिल्कुल हाथ लिफ्ट नहीं किया, बिल्कुल अभ्यास नहीं किया. आई स्टेड अवे फ्रॉम yoga, but then eventually I knew that my way was only through yoga. I started visiting that ashram in Sivananda, and Sivananda ashram in Delhi, Nehru Enclave, and सिर्फ सूर्य नमस्कार किया और उनके जितने भी अभ्यास थे सब किए, और धीरे धीरे इवेंचुअली माय पेन डिसअपीयर्ड. आई थिंक कुछ भी करना नहीं पड़ा, एंड एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड. देन कम स्वाध्याय, द फोर्थ नियम. स्वाध्याय मीन्स दो तरीके से लोग लेते हैं. स्टडी ऑफ द सेल्फ इज व्हाट आई टेक, एंड सेकंड इज कि आपको जो अपना पढ़ना चाहिए, आपको जो वेदों का ज्ञान लेना चाहिए. तो ये दो चीजें हैं. Study of self also means that you're observing your thought process, your evolution. You should be um, having this, अपने आप को एनालाइज करना चाहिए. अगर आपको गुस्सा, जैसे पहले मैं थी और अब मैं हूँ, जो उसमें तो जो ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आए हैं, दैट इज व्हाट आई थिंक द सेल्फ study is all about. That you are not reacting or overreacting to any random person. You need to have a same presence of mind all the time, or segmented thoughts, you know, more focus and more concentration. So you need to analyze कि if yoga is actually working or not. ये घटित हो भी रहा है योग, या नहीं हो रहा है, या सिर्फ ऐसे ही आप आसन किए जा रहे हैं, you know. So वो स्थिरता आनी जरूरी है आपके अंदर, तो उसका स्टडी. देन आपका, like the kind of books I have on my table, जो आपकी जो वेद है, बिकॉज योगा आई थिंक इज अनंत है ये. और इसकी जो हमारे जो वेद है, हमारे जो वेदों का ज्ञान है, वो इतना ज्यादा है. द मोर आई एम रीडिंग अबाउट इट, द मोर क्यूरियस आई एम गेटिंग अबाउट कि अच्छा इस संहिता में क्या लिखा है, उस उपनिषद में क्या लिखा है. मुझे ये हठ योग प्रदीपिका तो खत्म ही नहीं हो रही है, संस्कृत में है. संस्कृत टीचर को बुलाओ, अब उनसे मंत्रास का उच्चारण समझो कि ऐसे करते हैं. वाई a proper pronunciation of mantras is so very important. देन कभी कभी विष्णु इनकारनेशंस में इंटरेस्ट, मतलब ये इंटरेस्ट खत्म ही नहीं हो रहा है. इतना ज्यादा है कि वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कि मुझे लगता है कि अनंत ज्ञान है हमारे वेदों में, और अनंत ज्ञान है भारत के पास. तो ये कभी ना रुके, ये बस चलता रहे, चलता है. जितना आप सरस्वती माँ को प्रणाम करते हुए और ये पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, आपका जो विजडम है वो फैलता जाएगा, और आप उतना ही लोगों को अवेयरनेस लाते जाएंगे इस चीज को लेकर. ओके, सो पहले हो गया यम, नियम, और इनमें आपने इनके सब पार्ट्स बताए, और वो हमारे हमारे प्रैक्टिस के ऊपर है कि हम इनको कैसे फॉलो कर रहे हैं, या हम इनको कैसे रिस्ट्रेन कर रहे हैं हमारे लाइफ में. उसके बाद आता है आपका आसना और प्राणायाम, और ये है थर्ड और फोर्थ स्टेप जो लोग जनरली एज फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं योगा में. उनको लगता है कि आसना करना शुरू कर दिया तो मतलब हमें योगा आ चुका है. नहीं नहीं, हाँ जी, बिल्कुल तो सही बोल रहे हो आप. तो ये हो गया आपका थर्ड एंड फोर्थ स्टेप. अब आगे इसके आगे जो अगले 4 स्टेप अभी आप वो अगर बताएंगे तो. हाँ हाँ, ठीक है. और आसन और प्राणायाम के लिए भी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. a beginner should never practice pranayam for more than 10 minutes or 15 minutes, because मुझे ऐसा लगता है, और इनफैक्ट ये सबको ही ऐसा लगता है जो वैदिक ज्ञान से वाकिफ है, कि there are about 72,000 nadis in our body. लेकिन कोई और संहिता है, शिव संहिता मेरे ख्याल से, which says there are about 72, sorry, there are about 3.5 लाख नाड़ी हैं. लेकिन जो गिरण संहिता है वो बताती है कि 72,000 है. तो ये जो नाड़ी का जो पूरा जंजाल है, जो नेटवर्क है विद इन आवर बॉडी, आई थिंक दैट इज, ये पूरा का पूरा उलझा हुआ है. इट इज ऑल जम्बल्ड अप. ठीक है. तो आप मुझे बताइए कि वो जम्बल्ड अप के अंदर आप प्राणा एनर्जी का प्रवाह कैसे कराएंगे? वो तो जम्बल्ड है. अगर आप यहाँ पे एनर्जी प्रवाह चाहते हैं, यहाँ पे एनर्जी क्लॉग्ड है, चैनल्स क्लॉग्ड है, तो एनर्जी फ्लो ही नहीं करेगी ना पूरा आगे. तो आपको पहले उस जंजाल को ठीक करना है. यू हैव टू नीड टू हैव दिस फ्लॉलेसली. आपको उसको अनटैंगल करना रहेगा. ठीक है. आप अनटैंगल किससे करेंगे? आसन से करेंगे. हेंस आसन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिफोर प्राणायाम स्टेज. सो जब आपने आसन कर लिए, आपको मैं ये नहीं बोल रही कि आप
80-85 आसन करो, नो, आपको रेगुलरली कम से कम 20-25 आसन करने चाहिए। कम से कम 3 आसन में तो आपको इतना हो कि आप बैठ सके, आप पद्मासन में या सिद्धासन में या सुख आसन में आप बैठ सको, फॉर एटलीस्ट 1 आवर, यू नो विद द इरेक्ट स्पाइन, राइट। और फिर जब आप प्राणायाम में आते हैं तो आपकी बॉडी इतना मूव ना करे, बिकॉज यू नीड टू हैव अ स्टिल बॉडी। जैसे जैसे प्राणायाम करेंगे उसके अनुभव बढ़ेंगे, तो आप, जैसे सबसे सिंपल जो मैं बोलती हूँ, नाड़ी शोधन इज द बेस्ट प्राणायाम टू एंटर इनटू अ ध्यान अवस्था स्टेज। ठीक है, तो उस स्टेज में आने के लिए आपको स्टिल रहना पड़ेगा, एकदम स्टिल। आपकी जो बॉडी स्टिल रहेगी, तभी जो उसके अंदर जो एनर्जी का जो प्रवाह है आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ऑन अ सटल लेवल, प्राणिक बॉडी के लेवल पे। सो that is why pranayam is very important, and always do pranayam under the guidance of a certified Vedic practitioner, I would say। certified भी नहीं, मतलब जिनको वैदिक शिक्षा आती है, आचार्य हैं जो गुरुकुल से हैं, जिन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की हो। बिकॉज अगर आप गलत तरीके से प्राणायाम करते हैं, इट कैन end up injuring you। I have known a few cases where this person damaged both his knees because वो गलत तरीके से प्राणायाम करते आ रहे थे। ठीक है, and the guy was in 40s। So that is the fourth। Then we come into the pratyahara stage। Pratyahara stage is a very, I think it's difficult, it's very difficult, because I think I am at pratyahara stage, and I'm taking my own sweet time। लेकिन उसके लिए आपको प्राणायाम का, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे आसन का 2 साल का अभ्यास किया, जो मैंने सही तरीके का अभ्यास किया विद द करेक्ट अलाइनमेंट टॉट बाय माय गुरुजी, तो वो 2 साल का अभ्यास जाके मैं प्राणायाम की स्टेज पे अपने आप को पा सकती हूँ अभी। मतलब मैं पाई अपने आप को, मैंने पाया कि हाँ, अब मुझे प्राणायाम करना है, और प्राणायाम के एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रत्याहार का स्टेज अपने आप तब आएगा जब मैं एटलीस्ट 1 या 2 साल तक प्राणायाम लगातार करूंगी, एकदम डेडिकेटेड होके। 1 घंटा भी नहीं, 2-2 घंटे में बस स्टिल बैठी हूँ और सिर्फ प्राणायाम कर रही हूँ। लोग मैंने देखा है प्राणायाम करते हुए, नाड़ी शोधन करते हुए, दे टेक द सपोर्ट ऑफ देयर हैंड्स, मुद्रा का साथ देते हैं। लेकिन आप उस स्टेज पे लाइए अपने आप को जब आपको हाथों की जरूरत ही नहीं पड़ रही। यू कैन कंट्रोल योर ऑल्टरनेट ब्रीदिंग विदाउट द यूसेज ऑफ हैंड्स, राइट। तो अपने पैरासिम्पथेटिक सिंपथेटिक सिस्टम को कंट्रोल में करना है, अपने ईड़ा पिंगला को कंट्रोल में करना है, कि आप अपने सिर्फ ब्रेन से, अगर आप चाहें तो सिर्फ अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ऑपरेट कर सकते हैं, राइट को आप सांस ही ना लो, सिर्फ लेफ्ट ऑपरेट हो रही है। तो ये एक स्टेज है। धीरे धीरे ऐसे 500 प्राणायाम है, मैं ये नहीं बोल रही आप 500 करो, लेकिन आपको वो अनुभव आना जरूरी है। जब तक वो, क्योंकि ब्लिसफुलनेस स्टेज जो मैंने आसन में एक्सपीरियंस की, उसके बाद मैं प्राणायाम में अपने आप, मेरे शरीर ने डिमांड किया और मैं प्राणायाम में आ गई, और मुझे प्राणायाम के बहुत खूबसूरत अनुभव हो रहे हैं। अब जब मैं प्राणायाम प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे लगता है कि ब्लिसफुलनेस जब मुझे अटेन हो जाएगी प्राणायाम में, उसके बाद अपने आप ही आई वुड बी एबल टू कंट्रोल माय सेंसेस। जो ये 5 सेंसेस हैं, इनको विड्रॉ करना पड़ता है इनवर्ड्स इन प्रत्याहारा, दैट यू आर एबल टू लिसन टू द साउंड इन बिटवीन योर ईयर्स। जो एक नाद है, जो एक साउंड है, जो एक वाइब्रेशन चल रही है आपके भीतर, जो ओम है, वो आपको सुनाई देने लगेगी। आप बैठे हो, बैठे बैठे ही आपकी आवाज, कानों में आवाज आने लगेगी, ओम की गुंजन होने लगेगी। दैट इज व्हाट आई थिंक इज प्रत्याहारा। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट a couple of times। There are times when I'm in such a blissful state that I am able to listen to that silence between the ears, that yes, there is something which is there, and it is so blissful। So pratyahara अपने आप ही आएगा जब आपका शरीर, प्राणायाम आपको उस डायमेंशन पे ले जाएगा, बिकॉज प्राणायाम प्रोवाइड्स यू द एक्सपेंशन। योर पर्सनैलिटी, आपकी जो बॉडी है, उसको वो मल्टीपल डायमेंशन में एक्सपैंड करेगा। सो देर वुड come a time when you would be at that one particular dimension, that you would be able to connect with the higher self, you would be able to withdraw your senses in, and you would be able to connect with the inner self। That is pratyahara for me। After pratyahara comes the dharana। धारणा इज, मतलब लोग, पता है क्या, दे कॉल इट मेडिटेशन, कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, फैंसी टर्म्स, यू नो। मेडिटेशन से हम बहुत 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 दूर हैं अभी, because meditation is the kind of thing which enlightened people did, बुद्ध did। हमारे जितने स्वामीज हैं, हमारे सत्यानंदा जी, हमारे निरंजना,
अंदा जी, हमारे परमहंसा जी, विवेकानंद जी, ये सारे लोग हैं जो शिवानंदा जी, जिन्होंने मेडिटेशन किया है, जिन्होंने समाधि ले पाए हैं, जो समाधि का एकदम पेनल्टीमेट स्टेज होता है, दैट इज मेडिटेशन। तो हम जो करते हैं आज की डेट में, हम जो करवाना चाहते हैं, जो मैं अपनी क्लासेस में करवाना चाहती हूँ लोगों को, वो होता है धारणा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन एट वन पॉइंट। अपने पूरे थॉट प्रोसेस को, अपने मेंटल स्टेट को आप एक पॉइंट पे ले आए, दिस इज नोन एज अ सिंगल पॉइंटेडनेस, वन पॉइंटेडनेस, दैट इज धारणा, एकाग्रता, कंसंट्रेशन। सो चलता क्या है, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, 72 टैब्स ओपन होते हैं ऑल द टाइम, सो यू हैव टू समहाउ क्लोज वन, एवरी मतलब ऑल द टैब्स वन बाय वन। धीरे धीरे ये एक थॉट हमें ऊपर उठाना है और उस एक थॉट को इतना डोमिनेंट कर देना है कि बाकी सारे थॉट्स जो है उसके नीचे सप्रेस हो जाए, एंड दिस कम्स ऑन द टॉप, और आपका सारा ध्यान सिर्फ इसी थॉट पे है, दैट इज एकाग्रता। नाउ ये बहुत वेरियस काइंड्स की होती है। यू कैन हैव द कंसंट्रेशन ऑफ अ मेमोरी, मतलब आप एक कंसंट्रेशन कर सकते हैं किसी ब्यूटीफुल मेमोरी पे, किसी ब्यूटीफुल इमेज पे, भगवान की मूर्त पे, किसी सिंबल पे, किसी मंत्र पे, अपने सेंटर ऑफ ब्राउज में, अपने किसी चक्रास पे, अनाहत चक्र पे, हेल्प मी अलॉट। कुछ लोगों को डिजीनेस फील होता है यहाँ पे ना करके, दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द टिप ऑफ द नोज, सो देयर आर लॉट ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस। और इसके बहुत सारे नियम हैं जो हम शेयर कर सकते हैं करने के। तो एकाग्रता के बाद, धारणा के बाद आता है ध्यान। जब आप एक पॉइंट पे अपने थॉट्स को लेके आ जाएंगे, उस एक पॉइंट के बाद, उस पॉइंट पे आप जब ध्यान लगाना शुरू करोगे, दैट इज व्हाट ध्यान इज। ठीक है, तो हम ध्यान लगाते हैं। और ध्यान, इट्स नॉट अबाउट कि 1 महीना किया, 2 महीना किया, नो, इट इज अ वेरी बोरिंग प्रोसेस, ट्रस्ट मी। एट टाइम्स यू वुड बी लाइक व्हाट एम आई डूइंग, ऐसा थॉट्स भी आते हैं दिमाग में। लेकिन ध्यान, धारणा पे आना बहुत डिफिकल्ट है, धारणा से ध्यान पे जाना बहुत डिफिकल्ट है। और उस ध्यान के बाद आप, मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत इयर्स की प्रैक्टिस चाहिए बेसिकली। प्रत्याहारा, ध्यान, धारणा, सॉरी धारणा, ध्यान, और फिर समाधि। तो इट वुड टेक इयर्स, एंड हमेशा किसी एक गुरु के सानिध्य में ये करना चाहिए आप, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, आपको नहीं पता वो जो हर्डल्स हैं वो कैसे क्रॉस करने हैं, हाउ टू डू, हाउ टू हैव अ ब्रेक थ्रू इन योर मेडिटेशन। ये सब कुछ मतलब एक गुरु के ही गाइडेंस में ही करना चाहिए, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर हो। सो दीज आर द 8 limbs ऑफ योगा, एंड आई थिंक अगर आप किसी भी स्टेप को मिस करोगे, यू कैन नॉट सक्सीड ऑन द नेक्स्ट स्टेप। सो आपको बेसिस फ्रॉम द यम नियमास ही स्टार्ट करना पड़ेगा। Yes, means again this goes out for all our listeners. सब लोग मे बी कोई आसना करते हो, मे बी कोई प्राणायाम करते हो और उन्हें लगता होगा कि वो अपना कोई एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट जो ट्रू फीलिंग या ट्रू एक्सपीरियंस होता है उन स्टेजेस के थ्रू गुजरना, वो लोग कभी नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब तक आप उस सीरीज में ना जाओ। जी नाउ जी अगेन हम लोग एक लिंक भी ऐड करेंगे पॉडकास्ट में कि 8 limbs ऑफ योगा इन डिटेल इन टेक्स्ट क्या है, जो आपको जिनको भी और पढ़ना है इसके बारे में वो और डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब पूजा श्योर। जी, मेरे को एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग विपसना, एंड ये मैंने हमारे कॉमन फ्रेंड से भी पूछा था, अनुज वाधवा जी, जो हमारे एक ऑलरेडी हमारे पॉडकास्ट में आ चुके हैं, एपिसोड नंबर 7, इन केस अगर किसको वो वाला एपिसोड देखना है। बट मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो मैंने ये सवाल उनसे भी पूछा था। विपसना में पहली बात, विपसना क्या होता है मैं वो बता देता हूँ। विपसना बेसिकली एक मेडिटेशन रिट्रीट है फॉर 10 days फॉर एनीवन हु इज एंटरिंग फर्स्ट टाइम इनटू इट। उनके लिए उनको 10 days स्पेंड करना है वो रिट्रीट में, और वो रिट्रीट कंप्लीटली साइलेंट रिट्रीट है। तो मेरा सवाल ये है कि ये रिट्रीट का जब मैंने डिस्क्रिप्शन सुना, मैंने एक्चुअली खुद पर्सनली किया नहीं है, बट ये जब रिट्रीट का मैंने डिस्क्रिप्शन सुना, दिस इज लाइक ये स्टार्ट ही होता है प्रत्याहार से। अगर हम वो 8 limbs ऑफ योगा में देखें, ये स्टार्ट ही होता है प्रत्याहार से। तो
मेरे माइंड में ये सवाल आता था कि अगर समझो कोई ऐसा इंसान है जो बहुत मोटा हो और वो बैठ ही नहीं पाता हो, वो कैसे ये रिट्रीट कर पाएगा? तो आपके क्या थॉट्स है इस चीज के? एग्जैक्टली। यस, आपने बहुत अच्छे से ये बताया कि कोई मोटा इंसान है तो वो कैसे बैठ सकता है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। बिकॉज उस बंदे की रीढ़ सीधी नहीं है। ही कैन नॉट सिट स्ट्रेट। आप उसको फोर्सफुली बिठा के क्या करवाओगे? आपको पता है वहां पे वो पिलर्स होते हैं एंड दे गिव यू लॉट ऑफ कुशंस। आपको वो कुशंस की सपोर्ट से बिठाया जाता है। अब आप सोचिए, वो बंदा जो कभी बैठा ही ना 5 मिनट आलती पालती मार के नीचे, तो आप उसे कैसे बिठा सकते हो 5-5 घंटे? 5-5 आवर्स कॉन्टिन्यूसली बैठना होता है विदाउट मूविंग योर लिम्स। आपको सिर्फ स्ट्रेट बैठना है, आप बैठ ही नहीं सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि इससे किसी का कोई मतलब कोई बेनिफिट होगा उसको फिजिकली और मेंटली। बट यस, वन थिंग विच आई थिंक इज, जब कोई इंसान मौन रहता है तो एक होता है ना कि हम जब इतना बोलते हैं, हमारी जो एनर्जी है वो सारी बाहर की तरफ डिसिपेट होती रहती है। व्हेन यू आर क्वाइट, वी कंजर्व दैट एनर्जी, राइट? हम एनर्जी जब कंजर्व करते हैं, स्टार्टिंग में हमारे बहुत थॉट्स आते हैं दिमाग में, बहुत कुछ चलता रहता है। लेकिन देयर कम्स अ पॉइंट इवेंचुअली, मे बी आफ्टर 2 days, 3 days, 4 days, when your mind gets bored and tired and it calms down। जो थॉट्स है ना, जो बहुत ज्यादा ऐसे हैप्पी मैनर में चलते रहते हैं, इट सेटल्स डाउन। बिकॉज कोई है नहीं बात करने के लिए। आप कुछ बात कर भी रहे हो, देयर इज नोबडी हु इज रिएक्टिंग टू योर थॉट्स और टू योर थिंग्स। सो यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ, यू स्टार्ट विड्रॉइंग। आप खुद से ही बात करने लग जाते हो, आपको आपके थॉट्स क्लैरिटी आने लग जाती है, दिखने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचिए, अगर ये विपस्सना रिट्रीट्स को मैंडेटरी कर दिया जाए कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने इतने टाइम तक अभ्यास किया हुआ है, या जो यू नो आसन प्राणायाम यम नियम ये सब स्टेजेस कर चुके हैं, या इन्हीं इन्हीं का टाई अप हो जाए योगा स्कूल्स के साथ, कि आप पहले योगा के स्कूल्स के जो बच्चे हैं, या जो गुरुकुल्स हैं, या स्कूल्स के लोग हैं, मतलब वी कैन डू अ लॉट। वी हैव टू चेंज द होल एजुकेशन सिस्टम फॉर दैट, कि पहले स्कूल में बचपन से ही बच्चों को यम नियम सिखाया जाए और उनके पास एक आचार्य हो जो उनको प्रॉपर वे से आसन करना सिखाए। जब धीरे धीरे वो आसन में निपुण हो जाए, यम नियम आ जाए, मे बी फ्रॉम क्लास फोर्थ और फिफ्थ दे शुड बी, बिकॉज वो तब टाइम पे बच्चे बड़े हो जाते हैं। आई हैव टू किड्स एट होम, आई कैन नॉट टीच देम प्राणायाम एट दिस स्टेज। वो बिकॉज बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बहुत छोटा होता है, इट्स लाइक अ स्पैरोज कंसंट्रेशन टाइम। सो आई हैव ट्राइड टीचिंग देम योगा। योगा वो करते हैं लेकिन ओनली द फन आसनास, बिकॉज बच्चे दे कैन नॉट होल्ड एनी asana for really long time। they laugh, they fall, they get up, then they are so flexible कि वो intermediate और advanced आसन भी कर लेते हैं। So मेरा मेरा जो nephew है, he is like 9 years old, he can do a handstand, but when I make him do a a nadi shodhan, he can do it, but he cannot do it for more than 2 minutes or 3 minutes। तो अभी उसका बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है। सो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही चेंज करना रहेगा इसके लिए। तो हमने फिफ्थ क्लास के बाद बच्चे को समझ आने लग जाती है, ही कैन एक्चुअली सिट एंड वी कैन हैव अ प्राणायाम, a whole curriculum of pranayama included, and then we can have an acharya who can teach them pranayama in proper way। सिर्फ 5 या 10 या 15 प्राणायाम उनको सिखाइए, उनको प्रैक्टिस कीजिए। एंड उसके बाद व्हेन अ पर्सन, स्टूडेंट कम्स इन 8th क्लास, जैसे फॉरेन में समर स्कूल्स होते हैं, छुट्टियां होती हैं, उस टाइम पे इन स्टूडेंट्स को हमें ऐसे विपස්සना सेंटर्स में भेजना चाहिए जिससे कि उनके माइंड, उनका थॉट प्रोसेस एकदम काम डाउन हो जाए, शांत हो जाए। अब आपने अपने कॉन्वर्सेशन में वैदिक ट्रेडिशंस या एज अ लाइफस्टाइल फॉलो करने की बात की। क्या आप कोई 3 सिंपल चेंजेस एज पर वैदिक लाइफस्टाइल बता सकते हैं जो कोई हमारे लिसनर अडॉप्ट कर सकते हैं उन्हें? ओके, मतलब जो देखिए, जब गुरुजी से मैं मिली तो आई वाज फ्रॉम अ मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब लाइक टुडेज जनरेशन पर्सन, और वैदिक कल्चर यहाँ पे है। अब आज की अवस्था में दोनों को साथ में लेके कैसे चल सकते हैं?
सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अडॉप्ट दिस कम्प्लीटली, और ये तो हमें पूरा हमारी लाइफ स्टाइल को इससे आप देखिए ना, कोविड से कितने लोगों की मौत हुई है बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल दैट दे वर फॉलोइंग। ठीक है, तो उन्होंने एक तरीका बताया कि आप इन दोनों को क्लब करके कैसे चल सकते हैं, गेव अस अ मिडवे। So he founded this thing known as Midway Seeker, that he is seeking a path to enlightenment, and that path is a midway between how we can balance the Vedic and the today's modern times. So a very basic thing that we can start, and I inculcated in my lifestyle was I had to bring my circadian rhythm in sync with my lifestyle. Circadian rhythm अगर मैं बताना चाहूँ, जैसे अनुज जी है, he is a body clock coach, right? तो सही समय पे सोना, he sleeps by 10, and and I also sleep by 10, maximum by 10:30. The same time I get up at 5, 4:30, 5. So अपनी बॉडी को, अपनी दिनचर्या को आप सही तरीके से पहले ढालें। सही टाइम पे अभ्यास, सही टाइम पे you need to give time to settle down your thoughts or to reflect on the thoughts early in the morning. You have to sit quietly. थोड़ा उसको ध्यान बोलते हैं। ध्यान नहीं होता है, just to observe yourself and just be with your inner self, you know. और रात को मुझे ऐसा लगता है डिनर करने के बाद you should not be you know अपने गैजेट्स को आप बंद करके रख दो। Do not spend time on your phones or your laptops and read something productive, something a self help book maybe. मतलब अपने लिए एक रीडिंग का टाइम जरूर निकालना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि यू शुड रीड टू स्लीप, नो, यू शुड हैव अ गुड 1 hour टू रीड, टू लर्न समथिंग, मे बी पेन डाउन योर थॉट्स, एक जर्नल बनाइए। इट्स जस्ट दैट आई वांट यू टू मेक योर इंटायर डे प्रोडक्टिव। एक बार तो अपने दिन में आप कुछ क्रिएटिव चीज कीजिए, कुछ प्रोडक्टिव कीजिए, इंस्पायर समबडी। सो दीज आर द थिंग्स कि आप अपनी दिनचर्या को अच्छा प्रोडक्टिव दिनचर्या कैसे बना सकते हैं। दैट इज नंबर 1. Number 2 that I would like to say is, there's a very old saying that it's in Ayurveda, and I don't know, मैंने English saying भी सुनी है, लेकिन मैंने इसको बहुत आयुर्वेदा में पढ़ा है अलग अलग तरीके से, कि you become what you eat. तो हमारे आयुर्वेदा में ही there are three types, मतलब खाने के तत्व बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो मुझे ऐसा लगता है, और ये लिखा भी गया है और मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया है, कि अगर आप सात्विक खाना खाते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कट ऑफ फ्रॉम योर रेस्ट ऑफ द थिंग्स, बट सात्विक खाने से आपके थॉट्स जो है वो पॉजिटिव होते हैं, आपके थॉट्स जो होते हैं सेन रहते हैं, योर माइंड इज सॉर्टेड। द डे आई ईट onions or garlic, I have felt it personally that I am more aggressive on those days. Really, I'm aggressive on those days. For example, I have to close a deal, I am on phone with the corporate, and I'm doing something or that. So when I have a very tied up schedule, so that day I know कि हाँ आज मुझे सात्विक खाना है, because I really need to make sane decisions. तो सात्विक खाना, फ्रेश खाना खाना, स्टेल फूड ना खाना। लोग क्या करते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत खाते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द जंक लेटली। उनको ये नहीं पता कि ये सब जाके इट इज हार्मिंग देम इन सम और द अदर वे। बिकॉज जब प्राणायाम स्टेज पे आएंगे ना, आपको प्राण शक्ति इन नेचुरल फ्रूट से, रॉ वेजिटेबल से, फ्रेश फूड से ही मिलती है। तो आप जितना कम खाएंगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है, और गुरु जी ऐसे बोलते हैं कि एक योगी को 50% खाना कंज्यूम करना चाहिए। ही कीप्स हिमसेल्फ हिज बॉडी ऑन द स्टार्वेशन मोड ऑल द टाइम। ही नेवर फुलफिल्स हिज स्टमक कि हाँ पेट भर के आज खाया है, नो। एंड मैं कोशिश करती हूँ ये करने की, हो नहीं पाता। 70 नहीं, मैं 50 नहीं, 70% कंज्यूम करती हूँ खाना। लेकिन हाँ, आई हैव मेड अ पॉइंट दैट आई विल ऑलवेज इंक्लूड फ्रूट्स इन माय मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो टाइम ये होता है कि आप जब रात को अर्ली डिनर कर लेते हो 6-7 बजे, तो आप जब अगले दिन उठते हो 5 बजे, आपने मॉर्निंग में अपना पूरा रूटीन कर लिया, जिसमें आपने अभ्यास किया है, ध्यान कर लिया, प्राणायाम कर लिया, अपनी क्लासेस कर ली, फिर आप सिर्फ गर्म पानी का सेवन कर रहे हो, और आपने कुछ ड्राई फ्रूट्स खाए। जब आप 8-9-10 बजे जब आप अपना फर्स्ट मील लेते हो, सो आपका सोचिए एक तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया है पूरा। सो आई ट्राई टू क्लब बोथ द मॉडर्न साइंस एंड द वैदिक कल्चर टुगेदर। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया है। नाउ इट्स लाइक यू आर डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी, जो आपने कल रात को 6-7 बजे खाया था। सो ट्राई टू कीप योर फूड वेरी लाइट रात को जब आप खा रहे हो।
ट्राई टू ईट खिचड़ी और सैलेड्स, और मतलब सैलेड्स भी मतलब बॉयल, जो इजीली आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए। डू नॉट ईट हैवी थिंग्स, मतलब बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। सूप ले लिया, ये सब चीजें, स्प्राउट्स खा लिया, हल्की हल्की चीजें। उसके बाद आप जब मॉर्निंग में खा रहे हो तो यू नीड टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, तो उस टाइम पे अगर आप फ्रूट्स खाते हो सो इट डिटॉक्सिफाइज। लेकिन लोग क्या करते हैं, पहले पूरा जंक खाएंगे पूरा हफ्ता पूरा महीना, एंड देन आई एम ऑन अ डिटॉक्सिफिकेशन मोड, 3 दिन के लिए मैं सिर्फ फ्रूट्स खा रहा हूँ। लेकिन वो 3 दिन के लिए नहीं खा पाते हैं फ्रूट्स, जस्ट से मैं 3 दिन के लिए हूँ। लेकिन चलो ठीक है, वो भी एक तरीका है, लेकिन बाय मतलब एक साथ बहुत सारा जंक खा लिया तो उसके तो हार्मफुल इफेक्ट्स आ गए ना आपकी मेंटल स्टेट पे, आपकी बॉडी पे। ठीक है, तो बाद में आप कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता वो एक तरीके से ठीक हो पाता है। अदरवाइज अनलेस एंड अनटिल यू आर डूइंग शंख प्रशालन जैसी क्रियाएं, जो हमारे वेद में लिखी हुई है, हमारे आयुर्वेदा में है, जिससे कि हमारी बॉडी क्लेंजिंग होती है, जो कि डीप क्लेंजिंग होती है फॉर इंटेस्टाइन्स। सो मुझे नहीं लगता कि वो रेगुलर रोजमर्रा की जिंदगी में कोई इंसान कर सकते हैं। और जो वैदिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो उनको नॉलेज है, वो भी कर सकते हैं, और वो भी 6 महीने में एक बार करते हैं। तो उसमें ही आपकी डीप क्लेंजिंग होती है, एंड योर आपकी जो इंटेस्टाइन है, इट इज क्लेंस लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। जो एक इन्फेंट होता है, उस टाइम पे जो उसकी आंतड़ियां होती है एकदम कोमल, उस लेवल तक आपकी डीप क्लेंजिंग हो जाती है। और आपको उस टाइम पे सिर्फ खिचड़ी और घी खाने को दिया जाता है, बिकॉज आपकी इंटेस्टाइन्स इतनी वीक हो जाती है, इतनी कोमल हो जाती है कि वो कोई स्पाइसी फूड, मतलब वो खिचड़ी भी बिना नमक की होती है, वो कुछ भी बेयर नहीं कर सकते। जैसे छोटे बच्चे को क्या दिया जाता है स्टार्टिंग में, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो माँ का दूध पीता है। तो उसी तरीके से एक बड़े इंसान को जब वो शंख प्रक्षालन क्रिया करता है, तो उसको सिर्फ खिचड़ी और घी, खिचड़ी इसलिए कि इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी, और घी इसलिए कि वो स्लाइड हो जाएगा इजीली आपकी इंटेस्टाइन में से, अब वो चिपकेगा नहीं आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर। जो कि इतना सारा गंद और जो जंक हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर लगे हुआ है, जो कि इट क्रिएट्स एलियनेटेड बॉडीज एंड पैरासाइट्स। I don't know if you have got it. मतलब I have read about it. I have seen people उनके उनके जब क्लेंजिंग होती है तो इतने बड़े बड़े पैरासाइट्स निकलते हैं उनके इंटेस्टाइन्स के अंदर। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द जंक विच दे हैव ईटन ओवर द इयर्स। एंड व्हाट दीज एंड यू नो व्हाट इन पैरासाइट्स में क्या होता है, दे डोंट हैव a full circulatory system or a digestive system or excretory system or hormonal system. They only have one thing, their nervous system. अगर आपने पढ़ा हो पैरासाइट्स के बारे में, they have a full fledged nervous system, and they control your thoughts, they control your emotions, and they force you to eat junk. आपका आपको खाना है फ्रूट्स, लेकिन वो आपको बोलेगा रोटी खाओ, रोटी खाओ, रोटी खाओ। दे विल डिमांड रोटी फ्रॉम यू, दे विल डिमांड wheat फ्रॉम यू। wheat एंड राइस आर दी नेगेटिव मिलेट्स, यू शुड नॉट कंज्यूम देम। वो अंदर जाके चिपकता है आपकी आंतड़ियों में। यू शुड हैव द पॉजिटिव मिलेट्स। अगर आप जानते हो पहले के जमाने में, it was only recently that we started producing wheat and rice so much. Otherwise, earlier India was the biggest producer of all these millets of बाजरा, ज्वार, जो बार्ले, मेज, ये सब चीजें बहुत ग्रो होती थी, और लोग यही खाते थे। बहुत सारे लोग जो आपने देखा हो पुराने जमाने के, उनकी स्ट्रेंथ देखिए आप आर्म्स में। जो पुराने जमाने की जो लेडीज होती हैं, जो नानीज होती हैं, दादीज होती हैं, वो आज की एज में, 90 की एज में भी खुद सारा काम करती है। वो खाना बनाती है, वो कपड़े धोती है, कैसे करती है। और जो अभी लेटेस्ट, मतलब माय नाना जी, ही इज 95 टुडे, and he has no problem, touch wood, and he still walks, he still goes to the shop। वो खुद सब कुछ करते हैं, वो आज भी सिर्फ चना खाते हैं, डजंट कंज्यूम राइस और व्हीट। तो मुझे लगता है कि हमें कॉन्शियसली खाना खाना चाहिए, बिकॉज यू बिकम व्हाट यू ईट। सो अगर आप जितना कंट्रोल करेंगे अपने खाने पे, उतना ही ज्यादा कंट्रोल आपके थॉट पे आएगा। लेकिन आप अपनी सेंसेस को कंट्रोल कैसे करोगे इस खाने की, जो आपका जो सोसाइटी सेंटर है, आपकी जो भूख है, उसे कंट्रोल कैसे करेंगे? उसके लिए आपको आसन करने पड़ेंगे, पहले आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, तभी आप अपने मेंटल स्टेट को, अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पाओगे। सेंसेस पे कंट्रोल आएगा तो आपकी जीभ पे कंट्रोल आ जाएगा, और आप फिर सिर्फ लिमिटेड खाना शुरू कर देंगे। दैट वाज नंबर 2। And number 3, I would say, a Vedic culture, a Vedic tradition which a person should imbibe in a daily lifestyle is the mantra chanting. मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रास जो है, जो संस्कृत लैंग्वेज जो है, वो सिर्फ एक इंडियन की जीवा पे ही
जब एक इंडियन संस्कृत को प्रोनाउंस करता है, तो वो जो क्लैरिटी है जो उस मंत्र के उच्चारण की, वो सिर्फ एक इंडियन के से ही आ सकती है. इफ यू सी फॉरेनर्स, दे कैन नॉट हैव दैट क्लैरिटी ऑफ संस्कृत. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उतना योग से कनेक्टेड नहीं फील कर पाते और कर सकते कभी भी जितना एक इंडियन कर सकता है. और ये जो मंत्रास हैं, जो संस्कृत मंत्रास हैं, दीज आर हाईली कॉन्सेक्रेटेड मंत्रास, जो युगों युगों से चलते आ रहे हैं, जो तब से लेके चल रहे हैं और आज तक उसके बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं. हर युग में, चाहे सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कल युग हो, आज भी हम जब एक ओम का उच्चारण करते हैं, दिस इज अ वेरी सिंपल mantra which I chant, and I have experienced immense positive benefits and effects of Om mantra chanting on me. तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को, चाहे वो कोई, क्योंकि ओम जो है, would not say this is related to any religion. ओम एक यूनिवर्सल साउंड है जो हमारे भीतर गूंज रही है. इट इज द साउंड ऑफ क्रिएशन, इट्स द साउंड ऑफ डिविनिटी, इट्स द साउंड व्हिच इज देयर इन द कॉस्मोस. जब प्रलय आएगा, when the great floods will come, I think this sound energy will only be surviving. सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सिर्फ एक नाद ही है जो रह जाएगा. ये ही है जो गुंजन करेगी पूरे ब्रह्मांड में. तो अगर आप इस मंत्र का चांट करते हैं, आई थिंक इट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ कामनेस, इट कैन ब्रिंग a lot of peace in your life and your thought process will be sorted. So ये तीन चीजें अगर आप अपनी जीवन शैली में उतारे, एक सिरकाडियन रिदम, अपना आप सात्विक भोजन और तीसरा मंत्र चांटिंग, सो आई थिंक you can have immense benefits and changes in your life, positive changes in your life. अब आपने भी जैसे मंत्र चैंटिंग का मैं बोला, कोई ऐसा मंत्र आपको पता है जो लोग जनरली चैंट करते हैं बट उनको, मतलब वो जो मोस्ट कॉमनली चैंटेड मंत्र है बट उसका मतलब लोगों को पता नहीं? ओके, जैसे फॉरेनर्स भी बहुत ज्यादा बोलते हैं और इंडियंस भी बोलते हैं. आई थिंक द द लव फॉर कृष्णा इज लाइक वेरी मच विजिबल राउंड द वर्ल्ड. तो एक छोटा सा मंत्र है, बहुत इजी है, बहुत मूवीज में आया है, गाने बने हैं, हरे रामा हरे कृष्णा. तो आई डोंट नो इफ पीपल रियली नो द मीनिंग ऑफ दिस. तो मैं जब कुछ भी मंत्र स्टार्ट करती हूँ, बोलना करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ, तो पहले मैं उसका उच्चारण लर्न करती हूँ हमेशा. तो फिर उसको सही तरीके से कैसे उच्चारण करना है वो, एंड देन आई लर्न द मीनिंग ऑल्सो. जब ये सब चीजें मुझे समझ में आ जाती है, मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है, देन आई स्टार्ट चांटिंग एनी मंत्र. तो वो अलग चीज है. जैसे आजकल मैं एक सरस्वती जी का मंत्र बहुत दिल से लर्न करने में लगी हुई हूँ. तो उसका पूरा का पूरा मैंने मंत्र लिख के, पूरा उसका मीनिंग लिख के सब कुछ यहाँ पे रख दिया है और आई पोस्ट इन फ्रंट ऑफ माय डेस्क कि मुझे जब भी लर्न करना हो. लेकिन हरे रामा हरे कृष्णा मैंने इसलिए चुना बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन एंड एवरीबडी नोज. दिस इज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड वन. तो हरे क्या है, रामा क्या है और कृष्णा क्या है? तो people really don't know, first of all, that Ram and Krishna are the are the incarnations of Narayan, of Lord Vishnu. उन लोगों को ये पता ही नहीं है. एक द्वापर युग में आया, एक त्रेता युग में आया, उन्हें ये भी नहीं पता है. उन दोनों का आपस में कनेक्ट क्या है, उन्हें ये नहीं पता है. उन्हें ये नहीं पता कि हरे क्या है. हरे इज बेसिकली दैट यू आर कॉलिंग अपॉन द गॉड, लेकिन एक बहुत ही मेजेस्टिक और सुप्रीम वे में. लाइक हरे, यू आर कॉलिंग हरे रामा, यू आर कॉलिंग अपॉन हरे, मतलब कॉलिंग अपॉन राम जी, एंड देन यू कॉलिंग अपॉन कृष्णा जी. तो हरे रामा हरे कृष्णा, दिस इज द मीनिंग, द सिंपल मीनिंग. लेकिन लोगों को लगता है, पता नहीं, हरि हरि मतलब हरे से हरि होता होगा, हरि इज फिर शिव को बोलते हैं, या क्योंकि हर हर महादेव भी होता है, तो वहां पे भी लोगों को कंफ्यूजन आता है. फिर कि हरि जो है वो विष्णु को बोलते हैं. तो हरे इज कॉलिंग अपॉन द गॉड. तो हरे रामा हरे कृष्णा. दिस वाज द मीनिंग ऑफ दिस. आई थिंक हमारे लिसनर्स अगर सुन रहे हैं तो उनको शायद अब समझ में आए कि किसी भी चीज को जानने से पहले आप उसको रिसर्च करो, आप पढ़ो उसके बारे में, तभी उसको उसका यूज करो. फॉर एग्जाम्पल, पीपल टॉक
some words also. उनको उनके मतलब पता नहीं होते, लेकिन they just start using those words in their daily everyday life. तो मंत्रास का बहुत ही महत्व है एक यौगिक और नॉर्मल किसी की भी लाइफ में. दैट्स ट्रू. मतलब ये, हाँ, ऐसे मैंने काफी सारे मिसकंसेप्शंस लोगों के देखे हैं. या तो रिसाइट करते हैं पर उनका कभी सोचा ही नहीं कि उसका मतलब भी हम पता करें कि क्या हो सकता है मतलब. बट अगर एक हैबिट है जी. रिसाइट करना, रिसाइट कर लिया और बात खत्म हो. तो गायत्री मंत्र स्कूल में गायत्री मंत्र रटवाया जाता है, उसको उसका मतलब भी बताया नहीं जाता है. मतलब मुझे तो लगता है लोगों को उच्चारण ही नहीं आता गायत्री मंत्र का. तो उच्चारण और उसका मीनिंग, ये सब चीजें आई डोंट थिंक सो द म्यूजिक टीचर्स देमसेल्फ नो टुडे, क्योंकि म्यूजिक टीचर्स ही कराती है. आई डोंट रिमेम्बर मुझे किसी ने गायत्री मंत्र का कभी मतलब भी बताया होगा. सो दैट इज वेरी सैड. यस, यस. नाउ कमिंग टू फूड, आप ऐसे कोई फूड आइटम्स है जो बिल्कुल अवॉइड करते हो? आई हैव लेफ्ट नॉन वेज, क्योंकि एक योगी को मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आई सी लॉट ऑफ पीपल दे कॉल देमसेल्फ योगा योगीज एंड योगा इंस्ट्रक्टर्स, और योगा इंस्ट्रक्टर रादर नॉट योगीज आई वुड से. क्योंकि एक योगी जो होगा उसको अहमियत पता होती है एक एक मास की, एक कि उसमें प्राण नहीं है. वो जो प्राण है वो, मतलब मैं कैसे बताऊं आपको. मतलब मैं अगेंस्ट मैं लोग मुझे शायद बोले कि दैट इज पीपल से माय लाइफ माय चॉइस एंड ऑल दिस, सो मेनी थिंग्स एंड मिसकंसेप्शंस रनिंग अराउंड. लेकिन अगर आप एक योगी है, एक ट्रू योगी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राण. ये जो प्राण है ये आपको कहाँ मिलते हैं, प्राणिक फूड क्या होता है, और आपको क्यों ये सब नहीं खाना चाहिए. बिकॉज अगर आप स्टेल फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, इनमें प्राण नहीं होते. आप किस लिए खाते हैं, आप किस लिए इकोलॉजिकल बैलेंस को हार्म कर रहे हो. बिकॉज पूरा का पूरा एक फूड चेन बना हुआ है ना. देर आर एनिमल्स, एनिमल्स का खाना नहीं मिल रहा है, आप उनका खाना खा रहे हैं. मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसको लेके. लेकिन हाँ, मैं सात्विक भोजन पे ही रिलाई करती हूँ. कभी कभार यस, क्योंकि मैं सिर्फ अपने घर में रहती हूँ, मैं खुद खाना नहीं बनाती, मेरी माता या मेरी भाभी बनाते हैं. तो onions and garlics also are there, mushrooms are there, cheese are there at times. So मैं बहुत कोशिश करती हूँ ये सब ना खाऊं, क्योंकि ये सब राजसिक तत्वों में आता है. राजसिक तत्व जो होते हैं, हाँ, a small amount of राजसिक तत्व is okay because you need to have hunger in you. And I'm not saying hunger is in a bad way. Hunger which drives you, to achieve your dreams. That is the hunger I'm talking about. वो भी moderation में. ये नहीं कि अगर कोई डील क्लोज नहीं हुई, या कुछ आपका बहुत सारे पैसे नहीं मिले, तो फिर यू विल गो मैड एंड क्रेजी. नो, यू नीड टू हैव a moderation in everything, and you need to accept everything which is coming your way. So I eat food only to control my mental state, number one. So sattvic food, I know it will always be keeping my thoughts sorted. Rajasic food in very small quantity, just to have that hunger, which keeps me driving towards my dreams and ambitions. That is number two. Third comes the tamasic, which मैं बहुत 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 दूर रहती हूँ, जिसके अंदर आपका प्रोसेस्ड फूड आता है, आपका बासी फूड आता है. होता है ना कि लोग पुराना खाना खाते हैं 3-3 दिन में रखा हुआ, बिकॉज फॉरेनर्स डू दैट. I'm very sad to hear this, but then there's a friend of mine. She stays alone in Australia, and she's a doctor. तो वो बहुत busy life है उसकी, and then she's preparing for a post specialization and everything. Although she's very much Indian and she eats Indian food and everything, but she prepares her food for like a Sunday. बहुत सारा खाना बना देती है. उस खाने को वो Monday, Tuesday, Wednesday तक खाती है. And I'm like, why? So she was like, I don't have time to prepare food every day, Pooja. I understand her majboori, but then instead of that stale food, I can't really force her to switch on to the the pranic food, maybe the fresh fruits and the salads and the fruits and all those things. But I am helpless, so I don't know what to tell her now. That and I if I try to force her more into all this, कि नहीं आपको ऐसा ऐसा try to give her ज्ञान, then
then she becomes agitated. So I really need to help the youth, the people कि भाई आपका थॉट प्रोसेस, आपका जो एजिटेशन जो भी आया है कॉन्वर्सेशन के दौरान, इट इज बिकॉज ऑफ दैट स्टेल फूड दैट यू आर ईटिंग। आपका अल्कोहल आता है उसके अंदर, आपका फिश वगैरह, तो आपका मीट आता है, वो सब चीजें तामसिक फूड में आते हैं, विच क्रिएट्स नेगेटिव इमोशंस इन यू, सच एज जेलसी, सच एज लस्ट, सच एज वो क्या होता है, किसी से बदला लेने की भावना, वो कॉम्पिटिटिवनेस, वो सब चीजें आपके इस फूड से आती हैं। और एक योगी की जर्नी जो होती है वो एक इंडिविजुअल जर्नी होती है। तो जितना आप इस तामसिक तत्वों से दूर रहेंगे, जितना थोड़ा सा राजसिक का मिश्रण चलेगा, जैसे चाय, आई टेक चाय, चाय एंड कॉफी कम्स इनटू राजसिक, बट मैं फिर भी चाय थोड़ा सा ले लेती हूँ बिकॉज आई कंसिडर इट एज अ आयुर्वेदिक कॉन्कोक्शन, जहाँ पे कि मैं बहुत सारा थोड़ा लौंग डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, अदरक डाल दिया, ये सब आयुर्वेदा के तत्व हैं और मेरे कफ को ये कम करने में हेल्प करते हैं। और थोड़ा सा दूध, बिकॉज दूध मिल्क जो है मुझे सूट नहीं करता मेरे कफ के लिए। एंड ये सारी चीजें अपना के और माइंड स्टे सॉर्टेड, और सिर्फ अपनी ही जर्नी पे फोकस करना है, अपने ही अभ्यास पे फोकस करना है, एंड सबको बांटते चलना है और साथ लेके चलना है। यस, मतलब आपने जो पॉइंट उठाया आपके फ्रेंड के बारे में और वो कैसे अपना फूड पैटर्न मैनेज करते हैं, मैंने ऐसे काफी लोगों का सुना है, और स्पेशली लोग जो यूएस में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, उनका पैटर्न ही ऐसा होता है कि अगर समझो घर पे किसको इधर खाना बनाने नहीं आता है या समझो उनको टाइम नहीं है, वो लोग पूरे हफ्ते या मे बी मैंने एक केस ये भी सुना है पूरे महीने का खाना बना के रखा और वो महीना खाना चल रहा है। मैंने ये भी केस सुना है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम माय है। और गॉड, दिस इज कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे ट्रेडिशनल इंडियन थाली का एक्सपीरियंस अगर उन्हें मिल जाए, जिसमें आपको मल्टीपल टेस्ट मिलते हैं, फ्रेशनेस मिलता है फूड का, तो आपको एक्चुअली रियलाइज होगा कि आप एक्चुअली क्या खा रहे थे पहले और ये क्या आपके सामने है। तो वो एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली। एकदम आपको किसको रियलाइज कराना है तो आपको उसको सीधा गोल्ड ला के दोगे तो मे बी एक डिफरेंस आ जाए उनके लाइफ में। बट हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन आपको पता है इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जब वो आते हैं घर पे, उस खाने को गर्म कर रहे हैं या जो भी, मतलब इट्स जस्ट अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आई थिंक जो अनुज जी सिखाते हैं ना, योर बॉडी क्लॉक एंड द टाइम मैनेजमेंट, आई थिंक सब लोगों को ये आना चाहिए कि टाइम कैसे मैनेज करना है। और जो मैं खाना बनाती हूँ, ट्रस्ट मी, इट डजंट टेक मोर देन 20 मिनट्स, बिकॉज जितना आप, आयुर्वेद बोलता है और योग भी ये बोलता है कि जितना आप अपने इंग्रेडिएंट्स को कम रखेंगे, सिर्फ 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स बस, व्हाट आई डू, आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई एम हैविंग देसी घी इन माय फूड। लोग देसी घी से भागते हैं, देसी घी इज अ गुड फैट, देसी घी मतलब मुझे, मैं अपने खाने को कभी फैट, कार्ब्स, प्रोटीन्स नहीं बोलती हूँ, लेकिन समझाने के लिए मैंने बस बोला कि देसी घी के जितने बेनिफिट्स है ना, इट्स वन ऑफ द सुपर फूड्स। लोग जो कीनुआ और पता नहीं क्या क्या चीजों के पीछे भागते हैं, देसी घी में बहुत शक्ति है। तो हमेशा अपने खाने में आप देसी घी प्रेफर कीजिए। बस देसी घी में आपको सिर्फ करी पत्ता डालना है और सिर्फ मेथी सीड्स डालने हैं। थोड़ा सा अगर आपको लगता है, जितने भी हमारी हर्बल चीजें हैं, काली मिर्च डाल दी आपने, रॉक सॉल्ट यूज कर लिया, मैं सिर्फ ये 4 इंग्रेडिएंट्स यूज करती हूँ, कभी कभार हल्दी डाल दी, दैट्स इट। और फिर कोई भी एक सब्जी डाल के उसको सिर्फ सॉटे करना है, एंड देन आई कंज्यूम, दैट्स इट। दैट इज माय रेसिपी फॉर एवरीथिंग एंड आई जस्ट कंज्यूम दिस। एंड हाँ, आप आटा पहले बना के रख जाइए, आप सिर्फ रोटी बनाइए, अब तो रोटी मेकर्स भी हैं, आटा मेकर्स भी हैं, सब कुछ है। इट जस्ट दैट अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे मेरा एक पोस्ट है, तो I initially used to be a very big fan of Greek salads and Caesar salads and all kind of amazing salads, and I used to have with lot of meat and chicken and everything. लेकिन और साथ में वो garlic bread देते हैं and lot of cheese on that, तो cottage cheese and stuff। अब मैंने उसी का इंडियन वर्जन बनाया है। मैं अपने सारे सैलेड जितना रॉ खा सकती हूँ वो एक तरफ, देन जो मुझे लगता है कि मैं रॉ नहीं खा सकती, फॉर एग्जाम्पल कैबेज है, ब्रोकली है, कॉर्न्स है, तो उनको थोड़ा सॉटे कर लेती हूँ इन द देसी घी। नाउ दैट इज माय सैलड। और साथ में इंस्टेड ऑफ ब्रेड, गार्लिक ब्रेड और समथिंग लाइक दैट, जो मैदा है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आई ट्राई टू हैव अ मल्टीग्रेन चपाती एंड दैट इज माय मील विद घी। तो मैं
ऐसे I'm started customizing and I've become more aware of Ayurveda, of the pranic food and about my body में अपनी body में अब I do not put garbage at all. It's a big no. Otherwise, I have to go for a Shankar which I'm very scared of after every 6 months. So उससे बचने के लिए I try to detoxify my body every day. यस, अगेन ये कुछ कुछ प्रैक्टिसेस है जो हम लोग फॉलो करें कि हाँ, और अगेन अवेयरनेस की बात है कि हम एक्चुअली क्या डाल रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हमें उस दिन कैसा लग रहा है। एक बार अगर कोई ऐसा करने लगा Exactly. तो फिर वो आगे अपनी बॉडी को अच्छे से समझ पाए। तो जी जी, absolutely. तो पूजा जी, we've just come to the end of our show. What message would you like to share with everyone? Okay. मैसेजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एक चीज जो आज कल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, जो मैं देख पा रही हूँ, सिंस आई एम ओनली एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, नॉट एनी अदर सोशल मीडिया, तो यहाँ पे मुझे दिखता है कि बहुत सारे योगीज हैं और लोग हैं इनफैक्ट जो लॉस्ट हैं और उनको योग अपनी लाइफ में लाना है। तो मैं बस ये बोलना चाहूंगी, अगर आपको अपनी योग जर्नी शुरुआत करनी है तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द राइट टीचर। जैसे अगर आप अपने बच्चों को स्कूल में डालना चाहते हैं या कॉलेज में डालना चाहते हैं, आप पूरा रिसर्च करते हैं उस स्कूल को लेके, आप उस कॉलेज को लेके रिसर्च करते हैं। सो व्हाई डोंट यू रिसर्च अबाउट योर वैदिक टीचर फर्स्ट? आप अपना जो योग है, यू शुड, योग को आप do not take it as a workout. First of all, it is not a workout, it's a work in. ठीक है, ये बहुत ही क्लीशेड लाइन है बट इट इज वेरी डीप। सो इट्स अ वर्क इन, इट एक्चुअली वर्क्स ऑन हीलिंग योर बॉडी, हीलिंग योर फिजिकल बॉडी, योर मेंटल स्टेट एंड योर एस्ट्रल बॉडी। तो आपको इन तीनों को अलाइनमेंट में लाना है। जब ये तीनों चीजें अलाइनमेंट में आ जाएगी, दैट इज व्हेन द योग विल हैपन। तो उसके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज हाथ जोड़ के, योग इज नॉट समथिंग विच यू कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब, इट इज नॉट समथिंग विच यू कैन लर्न फ्रॉम रील्स। जो 15 सेकेंडर रील्स का जो प्रेशर आ गया है अब योगीज पे, योगिनीज पे, बिकॉज हमारा जो कंटेंट कंजम्पशन है, वो टाइम फ्रेम जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। लाइक आई एम सो अमेज्ड टू नो कि आपके जो पॉडकास्ट होते हैं, आपके जो कंटेंट होता है वो 1 1 आवर लॉन्ग है। क्योंकि आजकल की, आई एम हैप्पी अबाउट इट, ट्रस्ट मी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट। बिकॉज लोग जो होते हैं आजकल वो बहुत ज्यादा कंटेंट कॉन्शियस होते हैं। कि पहले जमाने में जैसे हम 3.5 3 घंटे की मूवीज देखते थे, फिर वो 3 घंटे हुई, 2.5 घंटे की हुई, फिर जो ये फॉरेन हॉलीवुड मूवीज है वो 1 घंटे 1.25 घंटे की हुई, फिर आपकी वेब सीरीज आने लगी, 20 मिनट्स का आने लगा, फिर आईजीटीवी वीडियोस आए, उसके बाद अभी द ट्रेंड इज 30 सेकेंडर एंड 15 सेकेंडर। तो 15 सेकेंडर के हिसाब से इतना प्रेशर है आज की जनरेशन पे कि वो 15 सेकेंड्स में आपको योग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे आर इन दिस रैट रेस ऑफ हैविंग फॉलोअर्स, ऑफ बीइंग पॉपुलर, ऑफ हैविंग व्यूज। ये क्यों करना है? आप स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। आप एक योगी है, दिल से है, एक सही चीज समझाएं। अगर आपको पता है कि ये चीज का आप कंप्लीट नॉलेज नहीं दे पा रहे हैं उस 15 सेकंड के अंदर, तो आप अधूरी नॉलेज मत दीजिए। इनकम्प्लीट नॉलेज इज वेरी हार्मफुल बिकॉज यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रिकॉशंस, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शंस, यू आर जस्ट टॉकिंग कि ये आसन है कर लो, लेकिन किस किस को नहीं करना ये आसन, आप ये तो बताया नहीं आपने, राइट? तो ये सारी अगर आप देखें, पूरी जो बुक्स है, ये सब बुक्स के अंदर मैं ये इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे उसकी कॉम्प्लिकेशन भी पता हो कि मैं आई डू नॉट एंड अप हार्मिंग समबडी। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, आई वुड नॉट सजेस्ट दैट पर्सन टू गो इनटू एनी इन्वर्जन, बिकॉज उससे उसके हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा और उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ही कैन फील रेस्टलेस, राइट? सो दीज आर सर्टेन थिंग्स कि मैं बस लोगों से ये बोलूंगी कि यू शुड, मतलब बहुत सोच समझने के बाद आप अपने वैदिक टीचर का चयन कीजिए और आप उससे प्रॉपर शिक्षा लीजिए। या योगा स्कूल्स वगैरह, आजकल बहुत योगा स्कूल्स हैं जो करा रहे हैं, जो पूरे कोर्सेज कराते हैं। तो आप एक प्रॉपर एक फ्लो, एक बैच ज्वाइन कीजिए और उस बैच में, क्योंकि आजकल आप देखेंगे बहुत सारे योगिनीज बहुत सारे बैचेस करवा रहे हैं ऑनलाइन। तो अगर आपको करना है किसी भी योगी योगिनी के अंदर, आप अच्छे से गाइडेंस के अंदर आप कीजिए। खुद आप करोगे, आपको पता ही नहीं सीक्वेंस क्या है, अभ्यास कर आप कर रहे हो,
आपने गलत सीक्वेंस में कर लिया तो आपको बेनिफिट ही नहीं देगा। आपको पता होना चाहिए कि पहले आपकी कौन सी मसल्स आपके सिंपल आसनास करेंगे, सिंपल मूवमेंट्स के बाद आपको कॉम्प्लेक्स आसनास में जाना है। आपने पहले ही कॉम्प्लेक्स कर लिया फिर आप सिंपल पे करो तो कॉम्प्लेक्स के तो बेनिफिट ही नहीं मिले आपको, आपने वो अच्छे से किया ही नहीं। यू नीड टू डू एवरी आसन विद प्रॉपर अलाइनमेंट, तभी आपको उस आसन का बेनिफिट मिलेगा। माय गुरुजी हैज टॉट सिंपल त्रिकोण आसना इन 3 days, जो अभी आपको रील पे मिल जाएगा 15 सेकंड के अंदर, लेकिन गुरुजी ने पूरा उसका सीक्रेट ज्योमेट्री समझाने के लिए, उसकी कॉम्प्लिकेशन समझाने के लिए, उसका अलाइनमेंट समझाने के लिए, उसमें ब्रेथ वर्क समझाने के लिए, ही टुक अस 3 days, he made us do trikonasana repeatedly for 3 days, used to hit us on our calves की अगर हम सही नहीं कर रहे हैं, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 2-2 बजे तक हमने अभ्यास किया है। सो आई थिंक जितना आप अब एक योगी की साधना को समझेंगे, देखेंगे, उसके काम को देखेंगे, उसकी बातों से समझेंगे, उससे बात करेंगे, आई शुड ऑलवेज सजेस्ट यू टू गो फॉर अ कंसल्टेशन कॉल फर्स्ट टू अंडरस्टैंड योर टीचर कि आप किससे ले रहे हो। और उसके बाद जब एक योगी है, जब तक उसकी साधना कंप्लीट ना हो, या जब तक कंप्लीट तो शायद नहीं होती, लेकिन उसकी साधना को 1-2 साल जब तक वो पूरा अभ्यास ना कर दे, आई थिंक ये जो मैसेज है ये योगा इंस्ट्रक्टर्स के लिए है कि जो एकदम टीटीसी करके आते हैं 200 आवर्स का और उसके बाद एकदम से दे स्टार्ट टीचिंग, तो यू शुड नेवर बी इन अ हरी। आप आराम से टाइम लो, अपना अभ्यास करो और उसके बाद आप किसी और को सिखाओ। सो दीज वर द 2 messages, one for the people to have a proper choice of a Vedic teacher, and second is for the yoga instructors to invest in your sadhana first and then go for the teaching. Yes. Again, this goes out for all our listeners who are interested to learn yoga. Follow these steps before getting in touch with any teacher. कोई भी गुरुजी आपको लगता है कि आपको इनसे सीखना है, या लेट से आपको कोई एक मंथ लॉन्ग कोर्स करना है जहाँ आपको लग रहा है आपको काफी टाइम देना है, आपको काफी पैसा देना है, तो आप पहले समझिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं, आपको क्या सीखना है और उसका आउटकम आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। एंड डेफिनेटली डोंट गो बाय इंस्टाग्राम रील्स टू लर्न एनीथिंग, क्योंकि ऑब्वियसली उतने सेकंड में आप कितना ही सीख लोगे। आपको बस जो करना है उसका उसका प्रदर्शन ही दिख जाता है, बस और कुछ नहीं। मतलब रील्स आर एक्चुअली अ वे टू क्रिएट एंटरटेनमेंट। राइट, आप एंटरटेनमेंट करो, वहां पे एजुकेशन क्यों ला रहे हो? आप 15 सेकंड में आप किसी को कुछ नहीं सिखा सकते। व्हाई आर यू सेविंग योर मिनट्स देयर? आपके पास आईजीटीवी जैसा इतना बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे सिखाइए। तो द थिंग इज इतना ज्यादा कंपटीशन आ गया है ना, बिकॉज द फैशन इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो डांसर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अभी तो ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं, हर चीज से ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं। सो आई जस्ट वांट, लाइक, इंस्टाग्राम इज ruining the culture, I would say. But I can't really blame them directly as well because people are not conscious enough as well. That's true. That's true. So, Pooja ji, thank you for coming on the show. It was great having you. Where can everyone find you on the internet? आप अपने कौन से सोशल हैंडल्स है जहाँ आप पूरे टाइम अवेलेबल हो? हाँ, तो मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही अवेलेबल होती हूँ, शिव_योगिनी, तो शिव SHIV_योगिनी। एंड यूट्यूब चैनल भी है, बट आप वही इट्स नॉट दैट मच मतलब एक्टिवेटेड। और फेसबुक है, वेयर इज शिव योगिनी इन द मेकिंग, या दैट इज द नेम, आई थिंक। ओके ओके, तो we'll definitely लेकिन आप link. मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आई वुड बी अवेलेबल। Yes, yes. So we'll link all these YouTube, Facebook, and Instagram links in the show notes for our listeners. And if in case anyone wants to Sure, get sure. in touch Sure, with sure. Pooja ji on her upcoming yoga retreats or any wellness retreats, you can definitely contact her. She will give her. I'll try to add her number too in the episode, so that would help the listener or the viewer. Okay, Pooja ji. Thank you for coming. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ट्रस्ट मी। बिकॉज किसी और की जर्नी के बारे में, किसी और की थॉट प्रोसेस के बारे में, किसी और की टीचिंग्स के बारे में कोई ऐसे सुनना नहीं चाहता, अनलेस एंड अनटिल द अदर पर्सन इज अ रियली हाईली एस्टैब्लिश्ड पर्सनालिटी और एन एमिनेंट वन।
लेकिन आप जो ये चीज कर रहे हैं, बिकॉज देर आर स्मॉल स्मॉल revolutionaries, I will say, like Anuj ji is there. उनका जो विजन है, वो he is a visionary, I would say. So और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनके सानिध्य में भी he is there and he's guiding me in certain things, and मेरे गुरु जी हैं. तो we are the small 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 people, जो revolutionaries मैं बोलूंगी, कि जो एक चेंज लाना चाहते हैं और ला रहे हैं अपने अपने कार्यों से, लेकिन आप उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हो और यू आर गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म, अ बिग प्लेटफॉर्म लाइक दिस, जहाँ पे आप उनकी बात, उनको मौका दे रहे हो अपनी बात रखने का, लोगों को सुनने का, अवेयरनेस बढ़ाने का. तो ये एक बहुत ही नेक काम है. एंड मैं आपको सच में बहुत ज्यादा हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहूंगी कि थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर. एंड आपसे बात करके, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा. एंड आशा करती हूँ हम लोग जुड़े रहेंगे और आगे कुछ जरूर कार्य साथ में करेंगे. Definitely, definitely. Thank you so much, and see you. थैंक यू.